وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیزہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ میں نثار کو لیے ہوئے اونچے نیچے ناہموار راستوں پر قدم آگے بڑھاتی رہی اور اچانک ایک جانب سے وحشیانہ کہکے سنائی دیے اور پھر کسی نسوانی خوفزدہ سی آوازیں ابھری۔ بس دو کو باہر گھسیٹ لا ایک بھاری مردانہ آواز میں نے سنی، اور یہ آواز دائیں جانب کچھ فاصلے سے سنائی دی۔ میرے قدم جیسے خود بخود تیزی سے ادھر اٹھنے لگے۔ آگے چند قدم پر ایک موڑ تھا اور اس موڑ تک پہنچ کر مجھے قدرے نشی میں خاصے فاصلے پر ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ تنہا تھا اور میں نے غالباً اسی کی بھاری آواز سنی تھی، اور چند ہی لمحے بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھی سے پھر کہا۔ اس کا ساتھی شاید اس غار میں تھا جس کے اندر روشنی ہو رہی تھی، اور ذرا ہی دیر میں غار کے اندر ایک شخص باہر آیا۔ اس نے دو لڑکیوں کی کلائیاں تھام رکھی تھی اور لڑکیوں کے جسموں پر مختصر سا لباس تھا۔ لے ایک کو تو سنبھال، غار سے باہر آنے والا اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا اور ایک لڑکی کو آگے دھکا دے دیا۔ وہ لڑکی لڑکھڑائی، مگر گرنے سے پہلے اسے غار کے باہر موجود شخص نے کلائی پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا اور لڑکی اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ ایک ایسی سہمی ہوئی فاختہ کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کسی شکرے کی گرفت میں آ گئی ہو۔ یہ دونوں ساحر زعیم کے عیاش خدمت گار ہی معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے نثار کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ ہاں، نثار نے اقرار میں سر ہلایا اور پھر دھیمی آواز میں کیا سرائی کی۔ اس غار میں شاید انہوں نے اغوا کی جانے والی لڑکیوں کو قید کر رکھا ہے، مگر یہاں سے یہ لڑکیاں فرار کیوں نہیں ہوتی؟ اور میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا وہ اب آبی زبان تک بھی آ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ نثار نے جواب دیا، ممکن ہے بوڑھے ساحر نے انہیں بھی فریب نظر میں مبتلا کر رکھا ہو، اور تیری ہی طرح انہیں بھی غار کے باہر گہری کھائی نظر آتی ہو، یا وہ کوئی خوفناک بلا دکھائی دیتی ہو۔ وہ دونوں خدمت گار غیر مسئلہ تھے، اور ہم دونوں دبے قدموں ان کا تعاقب کرتے رہے، اور وہ ان دونوں لڑکیوں کو ایک غار میں لے کر داخل ہو گئے تھے۔ لا خنجر مجھے دے دے، میں نے نثار کو دو دھاری تلوار نیام سے نکالتے دیکھ کر کہا، اور میں ان دونوں کے لیے کافی ہوں آتون، نثار بولا، اور اسی وقت غار کے اندر روشنی ہو گئی، اور میں نے خود آگے ہاتھ بڑھا کر نثار کی کمر سے بندھی ہوئی چمڑے کی پیٹی سے لمبا خنجر کھینچ لیا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد ہم دونوں بیک وقت اس غار میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک خدمت گار دہانے کے قریب ہی ہوس کا کھیل شروع کرنے والا تھا۔ میں اور نثار جیسے ہی غار میں داخل ہوئے، وہ دونوں ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ نثار اندرونی حصے کی طرف لپکا اور میں کچھ فاصلے پر موجود خدمت گار پر جھپٹی۔ اس سے پہلے کہ اس ابوالحاس کے سینے میں خنجر اتارتی، اس کے منہ سے تیز سیٹی کسی آواز بلند ہوئی، اور بالکل ایسی آواز غار کے اندرونی حصے سے سنائی دی۔ اس وقت میں اس تیز سیٹی جیسی آواز کا مطلب نہیں سمجھ سکی اور اپنے شکار کا سینہ چھین دیا۔ لڑکی اچھل کر ایک طرف کھڑی ہو گئی اور سینے پر دوسرا وار کھا کر وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ گرا اور اس کے سینے سے خون ابل ابل کر آس پاس پھیلنے لگا۔ اسی دوران نثار غار کے اندرونی حصے والے خدمت گار کی گردن اڑا چکا تھا۔ ابھی ہم ان دونوں خوفزدہ لڑکیوں کو لے کر اس غار سے نکلے ہی تھے کہ چاروں طرف سے عجیب سا شور سنائی دینے لگا۔ آتون، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ نثار کی گھبرائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ مرنے سے پہلے شاید ان دونوں نے اپنے ساتھیوں کو خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اب میں اس تیز سیٹی کا راز سمجھ چکی تھی۔ نثار کو بھی میں نے اس سے آگاہ کیا، اور پھر تو وہ ہمیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ نثار نے خدشے کا اظہار کیا۔ اب جو بھی ہو، کچھ ہی دیر میں وہ شور بالکل قریب آ گیا، اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے سارے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔
ये सनसनाहट अब मेरे लिए नई नहीं रही थी। उसी वक्त नसार ने मुझे मुखातब किया, आतून मुझे ना जाने क्या हो रहा है और मेरे जिस्म में बिजलियां सी दौड़ रही हैं। वो अजावाज से घबराया हुआ लग रहा था। मुबारक हो तुझे कि तेरे अंदर ख्वाबीदा पुर इसरार कुव्वतें अब जागने लगी हैं। और मैंने पुरजोश आवाज में नसार को बताया कि अब तेरी आंखों से भी तेज रोशनी खारिज होगी और फिर जो भी उसकी जिद में आ गया जलकर खाक हो जाएगा। हम उस वक्त जहां थे हमारे दाएं बाएं पथरीली दीवारें बुलंद होती चली गईं। हमला आवर दो सिमतों से ही आ सकते थे, सामने से और अकब से, और दोनों खौफजदा लड़कियों को मैंने एक बड़े पत्थर की आड़ में छुपा दिया। तो मेरी पीठ से पीठ मिलाकर खड़ा हो जा, मैंने नसार को मुखातब किया और उस खंजर को पेटी में उड़स कर लिया कि अब उसकी जरूरत नहीं रही और अपनी तलवार भी न्याम में रख ले। नसार ने मेरी हदायत पर ऐसा ही किया और मेरी पीठ से पीठ मिलाकर खड़ा हो गया। अब हम दोनों तरफ से आने वालों का मुकाबला कर सकते थे। और फिर चंद ही लम्हे गुजरे थे कि साहर ज़ईम के खिदमतगारों को उनकी मौत हमारे सामने ले आई। इससे पहले कि वो हमें घेर सकते, पकड़ लेते या अपनी गोलियों का निशाना बनाते, मेरी आंखों से तेज रोशनी निकलकर उन पर छा गई। उसी के साथ उनके जिस्मों में आग लग गई और पहाड़ी उनकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। अकब से भी मुझे ऐसी ही आवाजें सुनाई दी और फिर जोरदार धमाके होने लगे। ये धमाके उस असला के थे जो उनके पास था। हर तरफ जलते हुए इंसानी गोश्त की बू फैली हुई थी। खिदमतगारों के जिस्म सूखी हुई लकड़ियों की तरह जल रहे थे। अचानक फिजा में बुलंदी की एक जानब एक नामूज सनसनाहट सी सुनाई दी और मैंने नजर उठाकर ऊपर देखा और उछल पड़ी। उसी पहाड़ के एक नशीबी हिस्से से वही चारों बलाएं परवाज करती हुई ऊपर उठ रही थीं, जो मुझे और नसार को अगवा करके यहाँ तक लाई थी। और उन्हीं के बड़े बड़े परों की हरकत से वो सनसनाहट पैदा हो रही थी। और उन्हीं में से एक अजीब मखलूक बूढ़े साहर ज़ईम को अपने दोनों हाथों पर उठाए हुए थी और अंधेरा होने के बावजूद वादे तौर पर मैंने साहिर ज़ईम को पहचान लिया। साहिर ज़ईम को जो बिला उठाए हुए थी उसके पीछे वैसी ही दो बिलाएं और भी थी। उसके अलावा एक बिला आगे आगे उड़ रही थी। फिर मेरे आंखों से तेज रोशनी खारिज हुई और एक बिला पर छुआ गई और मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक उसके परों में आग लग गई और फिर उसका सारा जिस्म आग की लपेट में आ गया। उसी लम्हे मेरे करीब ही से फिर तेज रोशनी आसमान की तरफ लपकी और दूसरी बला को अपनी लपेट में ले लिया। उसी रोशनी में बकिया दो बलाएं आसमान की वुसअतों में बुलंद होकर मेरी नजरों से उजल हो गई। उन्हीं में से एक बला साहिर ज़ईम को उठाए हुए थी। बूढ़ा साहिर ज़ईम बचकर निकल गया और तेज रोशनी का शिकार होने वाली दोनों बलाएं फिजा में जलकर राख हो गई थीं। साहिर ज़ईम वहां से फरार हो चुका था और अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। हमने उसका मस्कन उजाड़ कर उसे राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। हर चंद कि यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी, मगर मुझे साहिर नदीम के फरार होने जाने पर बहुत मलाल था। मालूम नहीं कि वो अब कब और कहां हमारे हथे चढ़ता। अब यहाँ कैद मासूम बेगुनाह लड़कियों को आजाद कर दें, मैंने थकी थकी सी आवाज में नसार को मुखातब किया। और फिर उन दोनों लड़कियों की रहनुमाई में हमने कैदी लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। उन दोनों लड़कियों का ताल्लुक उसी पहाड़ के दामन में आबाद एक बस्ती से था। वहां हमें मुख्तलिफ इमारतों में 100 से ज्यादा लड़कियां कैद में मिली और वो सभी नौजवान और हसीन थी। उनमें से अक्सर का ताल्लुक इर्द गिर्द आबाद बस्तियों से था और वह सब साहिर ज़ईम के शहर का शिकार थी जो अब टूट चुका था। उस कार्रवाई के दौरान में ज़ईम के चंद खिदमतगारों को हमने मजीद मौत के घाट उतारा और वो हमें मुख्तलिफ गारों में मिले थे। कुछ खिदमतगारों को तो सोते ही में सफर आखिरत पर रवाना कर दिया गया। दूर नशीबी गारों में हमें तंदुरुस्त और बेहतरीन घोड़े बंधे हुए मिले और हमने उनमें से 2 घोड़ों को अपनी सवारी के लिए मुंतखब कर लिया। इसके अलावा ठिकाने लगाए जाने वाले खिदमतगारों में से 2 का असला भी हमने अपने कब्जे में ले लिया और वापसी के सफर में ये असला हमारे काम आ सकता था। एक राइफल और कारतूसों की पेटी मेरे पास थी और नसार के शाने से भी राइफल लटक रही थी। कारतूसों की पेटी उसने अपने गले में डाल ली। उस नौजवानों हसीन लड़कियों में से सिर्फ 3 ऐसी थी जिनकी इज्जत व आबरू महफूज थी। उनमें से 2 गुज़श्ता रोज ही ज़ईम के खिदमतगार अगवा करके लाए थे और एक को चंद रोज पहले अगवा किया गया, मगर ज़ईम ने उससे हाथ नहीं लगाया था।
उस लड़की के जिस्म के कुछ खास हिस्सों पर किसी बीमारी के निशान थे और इसलिए ज़ईम उसका इलाज कर रहा था कि वो सेहतयाब हो जाए या फिर उसके करीब से ही अपनी तन्हाइयां आबाद कर सके। ज़ईम चाहता तो उस लड़की को वापस उसकी बस्ती में भेज सकता था, मगर उसने लड़की की खूबसूरती के सबब उससे दस्तबरदार हो जाना कबूल नहीं किया और वहां अगवा करके लाई जाने वाली लड़कियों पर पहला हक बूढ़े साहर ज़ईम का होता था। हर लड़की को चंद रोज वो अपने पास रखता और फिर किसी नए शिकार की आमद पर या उस लड़की से दिल भर जाने के बाद उसे अपने खिदमतगारों के हवाले कर दिया करता। किसी खिदमतगार को यह हक नहीं था कि मुस्तकिल तौर पर किसी भी लड़की को अपने पास रख सके। हर लड़की पर हर खिदमतगार का हक था और बूढ़े शहर के शहर ही से एक और कमाल यह था कि उनमें से कोई भी लड़की मां नहीं बनती थी। लड़कियों का दौर जवानी जब खत्म होने लगता तो उन्हें बस्तियों में छिड़वा दिया जाता। सारा अहद शबाब गुजार कर जब ये लड़कियां बस्ती में लौटती थीं तो उन्हें कोई भी कबूल करने पर आमादा नहीं होता और यही वजह थी कि उनमें से अक्सर खुद को हलाक कर लेती। बूढ़े हवसकार साहर ज़ईम के बारे में इन्हीं लड़कियों से एक और अजीब बात मालूम हुई थी। लड़कियों को वो अपनी आगोश की जीनत बनाने से पहले तरह तरह की अज़ियतें देता। अक्सर लड़कियों के जिस्मों पर ऐसे दाग थे जैसे गर्म लोहे से उनके जिस्मों को दागा गया हो। अस्तफ़सार पर उन्होंने इसकी तस्दीक भी की। ज़ईम एक ऐसा जालिम दरिंदा था जिसे दूसरों को अजियत देकर सुकून मिलता और ज़ईम के बारे में मुझे ये सब कुछ जानकर उससे शदीद नफरत हो गई और मैं सोचने लगी कि काश उस सफाक दरिंदे को उसी के अंजाम तक पहुंचा सकती। ज़ईम के फरार के बाद अब मेरा और नस्वार का वहां रुकना लाहासिल ही था। अभी खासी रात बाकी थी और रात के वक़्त हम दुश्मन के जितने भी इलाके को अबूर कर लेते हमारे लिए बेहतर था। उन पहाड़ों के दामन में आबाद किसी न किसी बस्ती से गुजरकर हम आगे बढ़ सकते थे, मगर यहाँ से निकलने के बाद ये जरूरी नहीं था कि हम बस्तियों में दाखिल हुए बगैर उनके अतराफ से भी गुजर सकते। आजाद की जन्म लड़कियों को जब ये मालूम हुआ कि हम रात ही को रवाना हो रहे हैं तो वो भी हमारे साथ ही चलने पर आमादा हो गईं। वो हमारी गैर मौजूदगी में खुद को वहां महफूज नहीं समझ रही थी। अक्सर का ये ख्याल था कि हमारे जाते ही बूढ़ा साहर ज़ईम वहां फिर लौट आएगा। उन्हें मैंने समझाया कि वो लानती बूढ़ा अब लौट कर यहाँ नहीं आएगा, मगर वो नहीं मानी। मजबूरन उन्हें भी साथ लेना पड़ा। घोड़े कम थे इसलिए अक्सर घोड़ों पर दो दो लड़कियां सवार हो गईं। चंद मछलें भी साथ ले ली गईं जिनकी मुझे या नसार को कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, उन लड़कियों के मछलों की बहरहाल जरूरत थी ताकि वो ऊंचे नीचे रास्तों पर सफर कर सकें। उस पहाड़ के दामन में जो बस्ती आबाद थी नसार ने उसका नाम वसीत बताया था और ये बस्ती उस सरदार के नाम से मंसूब थी जो पहले आजाद खुद मुख्तार था मगर अब सयान का नायब कहलाता था। हमें उसकी बस्ती से गुजरना था और वहां से निकलते ही एक और अजीब वाकया रूनमा हुआ। जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर मैंने पलट कर देखा। पहाड़ी की बुलंदी पर मुझे अजीम मेहमन की हसीन कहना खजीरा का हियोला नजर आया और फिर वो हियोला चंद लम्हे नजर आके गायब हो गया और मैंने जमीन हिलती महसूस की तो अपने घोड़े की लगाम खींच ली और फिर मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वो पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसता चला गया और हैरत की ज्यादती के सबब कई लड़कियों के मुंह से चीखें निकल गई और जरा ही देर में उस पहाड़ की जगह शिकस्ता पत्थरों का छोटा सा टेला रह गया और बूढ़े साहर ज़ईम के गुनाहों का वो ठिकाना हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद हो गया था। नसार खौफजदा आवाज में मुझसे बोला, अतून, अगर हम इसी वक्त वहां से निकल ना आते तो पहाड़ के अंदर ही दब कर मर जाते। नहीं, मैंने पुरयकीन आवाज में जवाब दिया, हम अगर वहां से ना निकलते तो वो पहाड़ अभी जमीन में ना धंसता। मगर तू इतने यकीन के साथ ये बात किस तरह कह सकती है? आतून, नसार हैरत से बोला, क्या तूने पहाड़ी की बुलंदी पर अजीम महिमन की कहना खजीरा का रोशन हियोला नहीं देखा? मगर कब? उसने पूछा और उस वक्त जब गड़गड़ाहट सुनाई दी थी। मैंने जवाब दिया। गड़गड़ाहट सुनते ही मैंने पलटकर पहाड़ी की तरफ देखा तो मुझे उसकी बुलंदी पर चंद लम्हों तक खजीरा का हियोला दिखाई दिया और यकीनन खजीरा बूढ़े साहर के इस ठिकाने को नीस्तो नाबूद करने आई होगी। हम अगर उस पहाड़ी पर होते तो मुझे यकीन है कि वो ऐसा ना करती। मुड़कर मैंने भी देखा था ऐतून, मगर मुझे खजीरा नजर नहीं आई।
मगर तूने उसे देखा है तो वह जरूर आई होगी। जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर उस पहाड़ के दामन में आबाद सारी बस्ती ही जाग उठी थी। हम उस बस्ती के करीब ही थे और हमें कुछ ही फासले पर जलती हुई मछलियां नजर आईं। ये नई सूरत हाल मेरे लिए खिलाफ तवक्का थी। मैं कुछ फिक्रमंद सी हो गई। हमें बहरहाल उस बस्ती से होकर तो गुजरना ही था, इसलिए मजबूरन अपने घोड़े आगे बढ़ा दिए। हमारे पीछे लड़कियों के घोड़े थे और जमीन हिली थी तो उन्होंने भी हमारी तकलीद में अपने घोड़े रोक लिए थे। बस्ती में दाखिल होते ही हमारे काफिले को मसला मशल बरादरों के एक दस्ते ने अपने घेरे में ले लिया। वो इस बस्ती के मुहाफिज मालूम होते थे। तुम कौन लोग हो और किधर से आ रहे हो? एक घुड़सवार हमारे सामने आकर अपना घोड़ा रोककर बुलंद आवाज में पूछने लगा। ये वो गालबन उस दस्ते का सालार था। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता या नसार कुछ बोलता, एक नस्वानी आवाज पीछे से सुनाई दी। मैं बताती हूँ तुझे कि हम कौन है और कहां से आ रहे हैं। उसी के साथ मैंने एक लड़की को घोड़ा दौड़ाकर आगे आते देखा और मैं उसे पहचान गई। ये वही बीमार और खूबसूरत लड़की थी जो अपनी बीमारी के सबब ज़ईम के दस्त हवस से बच गई, और दस्ते के सलार का जवाब देने वाली वो लड़की घोड़ा दौड़ाकर आगे आई थी। और अगले ही चंद लम्हों में मुझे ये बात मालूम हो गई। उस लड़की के चेहरे पर नजर पड़ते ही दस्ते के सलार ने फौरन अपने घोड़े से कूद कर ताज़ीम दी और फिर हैरत से बोला, ऐ सरदार दादी, तू कहाँ थी? रोते रोते तेरी माँ ने अपनी बेनाई आंसुओं में बहा दी और हमारे बूढ़े सरदार और तेरे बाप की कमर दुख से झुक गई। हमने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया मगर तू नहीं मिली। सरदार ने तेरी तलाश के लिए अजीम साहर ज़ईम से भी इल्तिजा की और अजीम साहर ने सरदार से वादा किया था कि वह बहुत जल्द। बीमार लड़की ने जोर से हंसकर दस्ते के सालार की बात काट दी और कहा, मेरा बूढ़ा बाबा और तुम्हारा सरदार भी कितना बोला है कि उसने जालिम ही से उसके जुल्म की फरियाद की। क्या तुम्हारे सरदार को और खुद तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि इस बस्ती और आसपास की बस्तियों से गुम हो जाने या अगवा की जाने वाली हसीन और नौजवान लड़कियां कहां जाती हैं? उन्हें कौन अगवा करता है? फिर तुम किस तरह उस खुशफहमी का शिकार हो कि तुम्हारे सरदार की बेटी उस जुल्म से महफूज रह सकती है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरी तलाश में उस पहाड़ का रुख करते जो देवताओं के कहर का शिकार होकर जमीन में धंस गया? दस्ते का सलार का सर झुक गया। उसके चेहरे से शर्मिंदगी का इज़हार हो रहा था। शायद उसका झुका हुआ सर ही बीमार हसीन लड़की के सवालों का जवाब था। और फिर वो काफिला बस्ती की वाहद पुख्ता इमारत की तरफ बढ़ा। अब नसार के और मेरे दरमियान वो बीमार लड़की भी थी और बस्ती में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि चंद रोज पहले पुरअसरार तौर पर गायब हो जाने वाली सरदार वसीद की बेटी शीना खुद वापस आ गई है और उसके साथ अगवा की जाने वाली बहुत सी लड़कियां हैं। वसीद ही की बस्ती से अगवा होने वाली 3 और लड़कियां भी उस काफिले में थीं। उनके घर वाले शीना का शुक्रिया अदा करके उन्हें अपने साथ ले गए। उस हवेली के उस हिस्से में उन तमाम लड़कियों को ठहरा दिया गया और शीना मेरे और नसार के साथ एक बड़े से दालान में अपने बाप सरदार वसीद से मिली। बूढ़े सरदार वसीद ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। गालबन वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, या शायद सारे ही बाप अपनी बेटियों से उतनी ही मोहब्बत करती हैं। शीना अपने बाप के सीने से लगी हिचकियां ले रही थी और हवेली के अंदर जाकर अपनी माँ से वो पहले ही मिल आई। सीनों का बोझ कुछ हल्का हुआ तो सरदार वसीद की भारी आवाज सुनाई दी, सब्र कर बेटी कि तू अब अपने घर लौट आई है और मुझे बता के तू कहाँ थी। और शीना अपने आंसू पूरती हुई बाप के करीब बैठ गई और बताने लगी, बाबा मुझे जालिम ज़ईम के खिदमतगार अगवा करके ले गए थे। उस रोज शाम को जब मैं सैर करने पहाड़ की तरफ निकल गई तो उन्होंने मुझे घेर लिया। नहीं, बूढ़ा सरदार बेयकीनी से बोला, ज़ईम के खिदमतदार किसी सरदार दादी पर किस तरह हाथ डाल सकते हैं? उसी तरह ए बाबा जिस तरह वो दूसरों की बेटियां उठाकर ले जाते हैं। शीना बोली तो उसकी आवाज में हल्की सी तलखी थी। तो फिर इसके खिदमतगार ने तुझे भी? बूढ़ा सरदार शायद एहसास शर्मिंदगी के सबब अपनी बात पूरी ना कर सका। नहीं ए मोहतरम सरदार, शीना की बजाय मैं बोल उठा, देवताओं का शुक्र अदा कर कि तेरी बेटी जालिम तो संगदिल ज़ईम या उसके खिदमतगारों में से किसी के जुल्म का शिकार नहीं हो सकी, और उसकी वजह एक बीमारी थी जो उससे दूसरों को भी लग सकती थी।
زیم اسی لیے اس کا علاج کرا رہا تھا، اور پھر میں نے محتاط اور مہذب لفاظ میں بوڑھے سردار وسیط کو زیم کے سیاہ کارناموں سے آگاہ کر دیا۔ وسیط کے چہرے سے رنج و غم کا اظہار ہونے لگا اور پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، کاش سردار سیار کے حکم سے ہم مجبور نہ ہوتے اور اس کھلے ظلم پر خاموش نہیں رہتے، مگر کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خود میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ کمینہ ساحر میری بیٹی کو بھی اغوا کر سکتا ہے۔ پھر بوڑھے سردار کو شاید یہ خیال آیا کہ زیم کی قید سے رہائی کس طرح مل گئی، اور پھر یہی سوال اس کی زبان پر بھی آ گیا۔ بوڑھے سردار وسیط کے سوال کا جواب میری بجائے شینا نے دیا۔ یہ دونوں میرے اور سبب اغوا کی جانے والی لڑکیوں کے نجات دہندہ ہیں، اور خود میں نے ہی سردار وسیط سے اپنا تعارف کرایا کہ اے محترم سردار، میرا نام اتون ہے اور یہ میرا ساتھی مرتاق ہے۔ مجھے اور میرے ساتھی کو اغوا کرنے والا وہی لعنتی ساحر زیم تھا، مگر اس نے مجھے خود اپنے لیے اغوا نہیں کرایا تھا۔ تو پھر سردار وسیط نے حیرت سے پوچھا، زیم نے مجھے وادی سبت کے غاصب سردار سیان کے لیے اور اسی کے ایما پر اغوا کرایا تھا۔ پھر لڑکی سردار وسیط نے اچانک سخت لہجے میں میری بات کاٹ دی، تو ہر چند کی میری محسنہ ہے اور تو نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے، مگر تجھے اس کے باوجود میں یہ حق نہیں دے سکتا کہ تو سرداروں کے سردار عظیم سیان کو میرے سامنے غاصب کہے۔ اور میں نے یہ جاننے کے باوجود سردار وسیط کے سامنے سیان کو غاصب کہا تھا کہ وہ سیان کا نائب ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بوڑھا مجھے شریف معلوم ہوا۔ اے محترم سردار، کیا سیان واقعی غاضب اور محسن کش نہیں؟ کیا اس ظالم نے اپنے سردار آقا ہاشم کو قتل کر کے وادی سبز پر قبضہ نہیں کیا تھا؟ اور میں نے پرجوش آواز میں کہا، اور میری آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ آہستہ بول اے لڑکی، وسیط چونک کر بولا، اور یہ نہ بھول کہ اس حویلی میں بھی سردار سیان کا کوئی مقبر ہو سکتا ہے۔ مجھے بتا، مگر پست آواز میں، کہ تجھے برسوں پہلے پیش آنے والا یہ اندھوناک واقعہ کس طرح معلوم ہوا؟ وسیط کے لہجے سے تجسس کا اظہار ہو رہا تھا۔ اندھوناک واقعہ کہہ کر سردار وسیط نے میری دانست میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کر دیا۔ اب میرا ذہن ایک اور نئی نہج پر کام کر رہا تھا، اور میں کچھ سوچ رہی تھی۔ اس میں خطرہ تو تھا، مگر کامیابی کے امکانات بھی تھے۔ سردار وسیط کے بارے میں میرا قیاس اب تک درست ہی ثابت ہوا۔ میں تیرے سوال کا جواب ضرور دوں گی اے محترم سردار، میں دھیمی آواز میں بولی، مگر تو پہلے وعدہ کر کہ میرے سوال کا جواب بھی سچائی سے دے گا۔ ٹھیک ہے، سوال کر، تو وسیط کو جھوٹا نہیں پائے گی۔ سردار سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مجھے بتا اے محترم سردار، کیا سیان نے سردار ہاشم پر ظلم نہیں کیا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، وہ ظلم تھا، مجھے تسلیم ہے۔ سردار وسیط کی آواز بہت دھیمی تھی۔ سو زیان ظالم ٹھہرا، اور میں نے سردار وسیط کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بات اور آگے بڑھائی۔ کیا اپنے آقا سردار کو قتل کرنا محسن کشی نہیں؟ بالکل ہے۔ اس مرتبہ وسیط کی آواز قدرے واضح تھی۔ ظالم اور محسن کش سیان نے اپنے سردار ہاشم کو قتل کر کے اس کی وادی پر قبضہ کر لیا۔ کیا یہ قبضہ غاصبانہ نہیں کہا جائے گا؟ اور کیا سیان کو غاصب کہنا درست نہیں؟ وادی سبز سیان کی میراث تو نہیں ہے اے محترم سردار۔ تو جو کچھ کہہ رہی ہے اے لڑکی، وہ سچ ہے، مگر وادی سبز پر جو اپنے حق کا دعویٰ کر سکتی، وہ سردار ہاشم کی بیٹی مابلہ پور اسرار طور پر غائب ہو گئی، اور اسی کے ساتھ بستی کا مہا پجاری بھی نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ورنہ سیان زیادہ عرصے وادی سبز پر اپنا قبضہ برقرار نہ رکھ سکتا۔ وسیط نے پہلی بار سیان کے ساتھ سردار کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور اس سے میرا حوصلہ اور بڑھا، اور میں بولی، وہ کس طرح اے محترم سردار؟ اگر مظلوم مقتول کی سردار کی بیٹی زندہ ہوتی تو سردار ہاشم کے وفادار مختلف قبیلے سیان کو وادی سبز پر قابض نہ رہنے دیتے، اور خود وادی سبز کے عوام بھی سیان کو اپنا سردار تسلیم نہ کرتے اور اس کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ مگر اب تو ان باتوں سے کیا فائدہ؟ شاید سیان نے مہا پجاری اور مابلہ کو قتل کرا دیا ہوگا، ورنہ وہ سردار ہاشم کی بیٹی اپنے حق کے لیے ضرور لڑتی۔ اور اس لڑائی میں اے محترم سردار، تو کس کی طرف ہوتا؟ میں نے بہت نازک اور فیصلہ کن سوال کیا۔ ظاہر ہے کہ میں مظلوم ہی کی طرف ہوتا، کہ میرا شمار بھی سردار ہاشم کے وفادار دوستوں میں سے تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا اس نے مجھ سے انصاف کیا اور ہمیشہ مجھے دوست سمجھا۔ وسیط جیسے ماضی کی یادوں میں کھو گیا، اور پھر اس نے ایک دم چونک کر پوچھا، لیکن تو مجھ سے یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہے؟ اگر شینا،
शीना तेरे बारे में ये ना बता चुकी होती कि तूने उसे ज़ईम की कैद से रिहाई दिलाई है तो फिर मैं तुझे सयान की कोई चालाक मुखबर समझता। बूढ़ा सरदार ये कहकर मुझे मुश्तबा सी नजरों से देखने लगा। बूढ़े सरदार वसीत को मैंने अपनी तवक्का के मुताबिक खरा पाया और मेरे ख्याल में उस पर एतमाद किया जा सकता था। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि वह मेरे बाबा के वफादार दोस्तों में से एक था। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और बोली, ऐ मजलूम सरदार आशिम के वफादार दोस्त और मोहतरम सरदार, मैं अगर तुझसे ये कहूँ कि मकतूल सरदार आशिम की बेटी माबला जिंदा है तो क्या तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा? मेरा लहजा मैंने खेज था। वसीत चौंक कर मुझे देखने लगा और फिर उसने कहा, हाँ मैं यकीन कर सकता हूँ, मगर सिर्फ एक सूरत में कि सबूत अपनी आंखों से देख लूं। कैसा सबूत? मैंने कुछ ना समझने हुए दरियाफ्त किया। माबला के दाएं जानशाने पर सांप के फन का निशान था और वो निशान मैंने उसके बचपन में खुद अपनी आंखों से देखा था। मुझे मजलूम सरदार आशिम ने एक ज़ियाफत में वादी सबद बुलाया था और बरसों पहले की वो बात मुझे आज तक याद है। माबला उस वक्त से 2 साल की रही होगी और मैंने उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार किया था। वसीत ने जवाब दिया। मेरे जिस्म पर इस वक्त तक भी मुक्त सिर और नाकाफी लिबास ही था और मेरा दायां छाना खुला हुआ ही था, मगर वसीत की नजर यकीनन मेरे दाएं शाने पर अब तक नहीं पड़ी और यूं भी उसके और मेरे दरमियान कुछ फासला बहरहाल मौजूद था। अचानक मैं अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ी और अपना दायां शाना उसके सामने कर दिया। ऐ मोहतरम सरदार, तेरा मजलूम दोस्त सरदार आशिम की बेटी माबला तेरे सामने है। मैं ताजीमन उसके सामने झुक गई। वो तस्वीरें हैरत बना चंद लम्हे मेरे शाने पर मौजूद निशान को देखता रहा और फिर जज्बात से बोझल भारी आवाज में बोला, मेरी बच्ची, मजलूम बच्ची माबला, कितना खुश नसीब हूं मैं कि अपने दोस्त की बेटी को जिंदा देख रहा हूं। और फिर वो अपनी बेटी शीना से मुखाबत हुआ। ऐ शीना, ये तेरी बहन माबला है। इसे इसके हाल में देखकर उसके जिस्म पर लिबास भी पूरा नहीं, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पहले तू इसे अपने साथ ले जा और पहनने को पूरा लिबास दे। और सुन ऐ मेरी बेटी शीना, किसी को भी ये हरगिज ना बताना कि इसका नाम माबला है और ये मेरे दोस्त सरदार आशिम की बेटी है। मैंने उठकर शीना के साथ हवेली के अंदर चली गई। शीना मुझे एक कमरे में ले आई और पहनने को पूरा लिबास दिया। उसके और मेरे जिस्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए कपड़े मेरे जिस्म पर तकरीबन ठीक ही आए और शीना ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मैं उसके बाबा के दोस्त की बेटी हूँ। जोशे जज्बात में उसने एक बार फिर मुझे अपने सीने से भी लगा लिया। फिर मैं शीना के साथ दोबारा उसी दालान में आ गई जहां सरदार वसीत और नसार को छोड़कर गई थी। इस दौरान नसार भी बेलबास नहीं रहा और नसार के जिस्म का ऊपरी हिस्सा जानवर की खाल से बने हुए एक लंबे से कुर्ते में छुप गया। वापस पहुंचने के बाद जब मैंने धीमी आवाज में बूढ़े सरदार वसीत से नसार का तारफ कराया तो वो तकरीबन उछल पड़ा। ये नौजवान सरदार आशिर का बेटा नसार है। वसीत के लहजे में बेयकीनी से थी। हाँ ए मोहतरम सरदार, ये आशिर का बेटा नसार ही है। मैंने तस्दीक की। वही नसार के जिसने बूढ़े अय्यार वाहब को शिकस्ते फाश दी और फिर उसका कटा हुआ सर सयान को भेजा, मगर वसीत कुछ कहते कहते रुक गया और फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद खुद ही बोला, अगर ये वही नसार है तो फिर उसने तन तनहा अपने खुले दुश्मन सयान के दायरे असर इलाके में कदम रखकर यकीनन बहुत बड़ी गलती की है, जो इस जैसे ज़हीन नौजवान से मतवक्का नहीं थी। और ए मोहतरम सरदार, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? मैं बोल उठी, क्या मुझसे भी यही गलती सरजद नहीं हुई? लेकिन तूने बताया था कि तुझे अगवा कराया गया। वसीत ने कहा और उसकी पेशानी पर गौर फिक्र के सबब शिकने पड़ गईं। चेहरे से उलझन का अजहार हो रहा था। उसी के साथ मैंने भी ये कहा कि ऐ मेरे बाबा के वफादार दोस्त, मेरे ही साथ उसे भी अगवा किया गया था। अच्छा, वसीत ने लंबा सांस लिया। मैं समझ गया कि तू नहीं समझा ऐ मोहतरम सरदार। मैंने उसकी बात काट दी। ज़ईम के खिदमतगार हमें कलौज की बस्ती से पकड़ कर ले गए थे और वहां तक हम दोनों खुद ही पहुंचे कि देवताओं का हुक्म और मर्जी यही थी। तुम दोनों खुद यही दानिस्ता उस इलाके में दाखिल हुए थे। वसीत के लहजे में शदीद हैरत थी। हाँ, मैंने इकरार में सर हिलाया। ऐ मोहतरम सरदार, देवताओं ने हमारे ख्वाबों में आकर हमें यह हुक्म दिया कि हम दोनों तन तनहा बूढ़े साहर ज़ईम की तरफ जाएं और हमें ख्वाबों में ये बशारत दी गई कि नेकी बदी पर गालब आ जाएगी। सो हम अकेले ही इधर चल पड़े और मैंने दानिस्ता ख्वाबों का सहारा लिया ताकि असल बात ज़ाहिर ना हो। और फिर देवताओं ने ही बदी पर हमें फतह दी। लानती ज़ईम फरार हो गया और उसके सारे अय्याश बदकार खिदमतगार मारे गए
और गुनाह की जो दुनिया ज़ईम ने इस पहाड़ में बसा रखी थी, देवताओं के कहर से जमीन में धंस गई। क्या तुझ तक यह खबर नहीं पहुंची कि जो पहाड़ ज़ईम का मस्कन था नीस तो नाबूद हो गया? और मैंने खुद को गड़गड़ाहट भी अपने कानों से सुनी, और फिर मुझे पहाड़ के जमीन में धंस जाने की खबर भी मिल गई। वसीत ने बताया और फिर कहने लगा, अगर तुम दोनों देवताओं की मर्जी और हुक्म से उस इलाके में दाखिल हुए थे, तो तुम्हें अगर देवताओं की खुशनुदी हासिल थी, तो फिर तुम दोनों ने जुरात हिम्मत से काम लेकर यकीनन सवाब कमाया। और मुझे हकीकत भी ऐसा ही लगता है कि देवता तुम दोनों पर मेहरबान हैं, वरना तुम ना तो अब तक जिंदा बचते और ना ज़ईम का पहाड़ जमीन में धंस जाता। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि तुम कलाउस की बस्ती में पहुंचकर किस तरह बच गए, कि वहां तो अय्यारों का अय्यार समात भी मौजूद है। ऐ मोहतरम सरदार, समात तेरी दोस्त की बेटी के हाथों मारा जा चुका है। नसार पहली बार वसीत से मुखातब हुआ। क्या कहा तूने? नसार, समात मारा गया। बूढ़े वसीत को शदीद हैरत हुई। समात ही को कत्ल करने के जुर्म में हमें कलाउस ने कैद कर दिया था कि साहर ज़ईम के खिदमतगार वहां पहुंच गए। नसार ने कहा और फिर मुख्तसरन आशिर की बस्ती से देवता के हुक्म पर चलने और पकड़े जाने के वाकयात बयान कर दिए। उसके बाद ज़ईम के पहाड़ तक पहुंचने और वहां से देवता की मदद के बाद मिलने से तक हालात इख्तिसार के साथ वसीत को बता दिए। तो फिर ए माबला, तेरे बाबा का दोस्त भी पर्दा पोशी की खातर तुझे आतून ही कहेगा। बूढ़ा सरदार पूरी बात सुनकर बोला, तूने और नसार ने पर्दा पोशी करके बहुत अच्छा किया। सयान को अभी हकीकत का इल्म नहीं होना चाहिए। और सुन मेरी बच्ची, अब ये सिर्फ तेरी जंग नहीं रही, वसीत की जंग भी है। और तू देखेगी कि तेरे बाबा का वफादार दोस्त भी तेरे साथ साथ सयान से जंग करेगा। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए वसीत की आवाज जोश से भर गई। वहां करीब करीब ही 4 कबीले और आबाद थे। उन कबीलों के सरदारों ने भी सयान के जुल्म से बचने की खातिर खुद को सयान का नायब कहलवाना कबूल कर लिया। हालांकि उससे पहले वो खुद मुख्तार और आजाद थे, लेकिन अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से उन्होंने सयान की तमाम शराइत कबूल कर ली। यूं गोया उन्होंने सयान को अपना बड़ा और सरदारों का सरदार तस्लीम कर लिया था। ऐ मोहतरम सरदार, अगर तुझे यकीन है कि उन्हें एतमाद में लिया जा सकता है, तो फिर इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? नसार बोला, इस तरह दुश्मन के इलाके में हमारे हलीफ पैदा हो जाएंगे। ये कहकर नसार ने मेरी तरफ देखा। तेरा क्या मशवरा है आतून? ऐ नसार, इस वक्त तू और मैं दोनों ही यहाँ मौजूद हैं। इन सरदारों को एतमाद में लेने का बेहतरीन मौका है। और फिर ये कि मोहतरम सरदार वसीत भी यहाँ मौजूद है, जो इस मामले में हमारी पूरी मदद करेगा। मुझे उम्मीद है ऐ नसार कि हम अपने मकसद में नाकाम नहीं रहेंगे। उस रात का बेशतर हिस्सा हमने जागते हुए गुजारा। अब सुबह होने वाली थी, सो हमने सोने का फैसला किया। हवेली के एक कमरे में मेरे और नसार के सोने का बंदोबस्त कर दिया गया और हम दोनों आरामदाह बिस्तरों पर दराज हो गए और बेफिक्री की नींद सो गए, क्योंकि हमें वहां कोई खतरा ना था। दोपहर हो रही थी कि हमारी आंख खुली। पहले मैं ही जागी और नसार को जगाया। सरदार वसीत ने अपनी बेटी शीना के सही सलामत और बेखरियत वापस आ जाने की खुशी में गोया हमसाया कबाइल के सरदारों को आज शाम दावत दी थी। हाथ मुंह धोकर दोपहर का खाना हमने सरदार वसीत के साथ ही खाया और खाने के दौरान ही में वसीत ने हमें ये खुशखबरी सुनाई कि 4 कबीलों के सरदारों ने उसके दावत कबूल कर ली है और आज शाम वो सभी आ रहे हैं। शाम की ज़ियाफत में दानिस्ता मैं और नसार शरीक नहीं हुए कि हमने बूढ़े सरदार वसीत ही के मशवरे पर ऐसा किया। बूढ़ा और तजर्बेकार सरदार हम दोनों को फौरी तौर पर उन सरदारों के सामने नहीं लाना चाहता था और वो पहले अपने तौर पर इन 4 को ज़हनी तौर पर गुफ्तगू के उस मरहले तक ले आना चाहता था कि जहां असल बात शुरू की जाए। वसीत के ख्याल में इसी के बाद हमारा उन 4 के सामने आना मुनासिब था। ज़ियाफत के बाद सरदार वसीत इन 4 सरदारों को एक ऐसे कमरे में ले आया जिसके बराबर ही एक और छोटा सा कमरा था। मैं और नसार उसी कमरे में पहले से मौजूद थे और दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाजा था जो हमारी जानब से बंद था। उसके अलावा एक दरीचा था जिसे दानिस्ता खुला छोड़ दिया गया ताकि हम बराबर वाले कमरे में होने वाली सारी गुफ्तगू सुन सकें। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दोस्तों, क्या तुम्हें खबर है कि हमारी बेटी शीना कहाँ थी? बूढ़े वसीत ने अपनी बेटी की अगवा से बात शुरू की और फिर वह अपनी बात जारी रखते हुए मजीद बोला, यकीनन तुम सब हैरत करोगे
जब मैं हकीकत से पर्दा उठाऊंगा। सुनो ऐ मेरे दोस्तों, मेरी बेटी को अगवा करने वाले साहर ज़ईम के खिदमतगार थे जो देवताओं के कहर का निशाना बन गए। बीक वक्त रद्द अमल के तौर पर कई हैरत ज़दा आवाजें उभरी और फिर कोई बुलंद आवाज में कहने लगा, मगर ऐ मेरे दोस्त सरदार वसीत, ये तो खुला जुल्म है। और क्या ऐ मेरे मोहतरम दोस्तों, खुद हम ही ने सरदार सयान के हुक्म पर इस खुले जुल्म की इजाजत नहीं दे रखी? क्या साहर ज़ईम के खिदमतगार हमारी बस्तियों में घुसकर नौजवान और हसीन दो शीदाओं को उठाकर नहीं ले जाते? क्या वो अगवा होने वाली किसी की बेटियां नहीं थी? और क्या हमने हमेशा उस खुले जुल्म, सरीहन जुल्म को अब तक खामोशी से बर्दाश्त नहीं किया? बोलो, बताओ, क्या हमने कभी इस जिल्लत और बेहयाई में शर्मिंदगी महसूस की? क्या हम उस जुल्म पर खामोश नहीं रहे? क्या हमने कभी उस पर सजाए एहतजाज बुलंद की? और वसीत की आवाज पुरजोश होती चली गई। हाँ ऐ वसीत, तेरा कहना बिल्कुल दुरुस्त है, कोई जवाब में बोला। हमने यकीनन उस जुल्म पर मजबूर होकर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर तुझे खुद भी इसकी वजह मालूम है। बता कि हम सरदार सयान के हुक्म को कैसे टाल सकते हैं? उसके बावजूद अब से पहले कभी ऐसा ना हुआ कि साहर ज़ईम के खिदमतगार किसी सरदारजादी को अगवा करके ले गए हों। सो इस पर हम सरदार सयान से एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो तेरे साथ हुआ है आइंदा हमारे साथ भी हो सकता है। ऐ मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त, तेरा ख्याल मैं क्या सरदार सयान हमारे एहतजाज पर तवज्जो देगा और वो हमारे इस एहतजाज को नाफरमानी नहीं समझेगा? क्या तुम उसे नहीं जानते वो किस कदर सख्त गीर और अपने अहकाम पर अमल दरामद के बारे में कितना जिद्दी है? वसीत ने कहा। सरदार वसीत ठीक कहता है कि सरदार सयान हमारी एहतजाज को नाफरमानी समझकर हम पर बागी होने का इल्जाम आयद करेगा, और किसी ने वसीत के ख्याल की तायद की। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब उसके सामने कतई बेबस और उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम ज़ईम और ज़ईम के खिदमतगारों के मुतल्लक सरदार सयान का शर्मनाक हुक्म तस्लीम ना करते। उसके अलावा ऐ मेरे दोस्तों, एक और बात भी है। वसीत की आवाज आई। हमने खुद भी अपने आप को मजबूर और बेबस बना रखा है, वरना हम छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए अगर एक ही हो जाएं तो सरदार सयान हमसे कोई जिल्लत अमीज हुक्म नहीं मनवा सकता। वहीद आहिस्ता आहिस्ता मतलब की बात पर आता जा रहा था। ऐ मेरे दोस्त वसीत, तुझे खबर भी है कि तू क्या कह रहा है? किसी सरदार ने कहा, और मैं नहीं जानता, कि हम पांचों कबीले भी सरदार सयान के खिलाफ इत्तेहाद कर लें तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या मैंने ये बात गलत कही? ठीक कहा तूने ऐ मेरे मोहतरम दोस्त, वसीम ने जवाब दिया, मगर हमारी ही तरह कुछ छोटे छोटे कबीले भी सयान के दायरे असर हैं, और मैंने खास तौर पर यह बात महसूस की कि इस मर्तबा उन्होंने बड़ी होशियारी से सयान के सात सरदार नहीं कहा था। अब वो कह रहा था, मसलन वादी सबज के मगरूर में भी हमारे ही तरह 3 छोटे छोटे कबीले आबाद हैं, और हम उनसे भी तो इत्तेहाद करके अपनी कुव्वत में इजाफा कर सकते हैं। बतौर खास कबीला सनिया का सरदार तो फौरन हमसे इत्तेहाद करने पर आमादा हो जाएगा कि उसकी 13 साला बेटी को सयान ने गुज़श्ता दिनों ही जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया था, और फिर किसी बात पर खवा होकर उसे कत्ल भी कर दिया था। बोलो मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या कबीला सनिया पर सयान ने यह जुल्म नहीं किया? ऐ मेरे दोस्त वसीत, सरदार सयान के जुल्म की ऐसी और बहुत सी दास्तानें हमारे इल्म में हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं इसके सिवा के खामोश रहें। हमें मालूम है कि जुल्म पर खामोशी इख्तियार किए रहना भी जालिम के जुल्म को मजीद हवा देना और जालिम का साथ देने के बराबर है। लेकिन हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए हमारा खामोश रहना ही फिलहाल मुनासिब है। मुमकिन है कि देवता सयान के मजालम से तंग आकर खुद उसे सजा दें। कोई बोला, क्या देवताओं ने सरदार आशिर के बेटे नसार की सूरत में सयान को सजा देने वाला नहीं भेज दिया? वसीत की आवाज सुनाई दी। क्या ऐ मेरे मोहतरम दोस्तों, तुमने नहीं सुना कि नसार ने किस तरह सयान के दस्ते रास्त और मजबूत मोहरे वाहरब को जिल्लत अमीज शिकस्त से दो चार किया? हाँ ऐ सरदार वसीत, देवता ने यकीनन उस बहादुर नौजवान को सयान से हमारा बदला लेने ही के लिए तैयार किया है, किसी ने वसीत की तायद में कहा। इस पर सरदार वसीत ने बात को मजीद आगे बढ़ाया। तो क्या ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसी सूरत में कि हमें उससे बदला लेने वाले का साथ नहीं देना चाहिए, मगर ना तो हम उस बहादुर नौजवान को जानते हैं और ना उससे हमारा कोई राब्ता है, फिर भला हम उसका साथ किस तरह दे सकते हैं?
اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں کہ وسیط کا وہ بہادر نوجوان ہم پر بھروسہ کر لے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہاب کو عبرتناک شکست دے کر سردار عاشر کے بیٹے نثار نے اپنی بہادری اور دلیری کا سکہ جما دیا ہے۔ اس نے اپنی آبائی بستی واپس چھین لی اور اس کے علاوہ پہلے ہی سے وہ اپنی بسائی ہوئی 2 بستیوں کا سردار تھا، جہاں اس کے نائب اول اور اعظم مقرر ہیں۔ پھر اسے یہ بھی تصدیق ہو چکی کہ عاشر کی بستی کے شمال میں جو 2 قبیلے پہلے سردار سیان کے معاہدہ امن میں بندھے ہوئے تھے، وہ بھی اب نثار ہی کے زیر نگین آ چکے ہیں، اور یوں اس نے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ مگر یہ ساری باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں اے وسیط کہ تو مجھے حالات سے غافل اور لا علم نہ سمجھے۔ کسی کو اسی وقت اپنے قبیلے کی سرداری زیب دیتی ہے جب وہ پوری طرح ارد گرد کے حالات سے باخبر ہو۔ اب میرے محترم دوستو، میں تم سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، وسیط بولا، اور مجھے اپنے اس سوال کا جواب چاہیے۔ مجھے یہ جان کر واقعی خوشی ہوئی کہ تم سبھی کے حالات پر گہری نظر ہے۔ سنو کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر ہمیں سیان کے خلاف سردار عاشر کے بہادر بیٹے نثار کی تائید و حمایت حاصل ہو جائے تو کیا تم سیان کی نوبت ٹھکرانے پر آمادہ ہو جاؤ گے، اور کیا پھر سردار نثار کا ساتھ دو گے؟ لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا اے وسیط کہ یہ ممکن کس طرح ہے؟ جو سردار وسیط سے بول رہا تھا پھر بول اٹھا۔ فرض کرو کہ نثار خود یہاں خود آئے اور تمہیں اپنی تائید و حمایت کا یقین دلائے تو تم ظالم سیان کے سامنے سینا سپر ہو جاؤ گے۔ سردار وسیط نے دریافت کیا، یقیناً وہ بہت بہادر نوجوان نثار ایک ابھرتی ہوئی بڑی طاقت ہے، اور اس میں سیان سے ٹکرانے کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی طرح اور کسی بھی ذریعے سے ہمیں اپنی حمایت کا یقین دلا دے، ظاہر ہے کہ ہم اسی کا ساتھ دیں گے، ایک سردار نے جواب دیا، اور پھر بقیہ 3 سرداروں نے بھی اس کی تائید کر دی۔ اور اب میرے معزز محترم دوستو، آخری بات سنو کہ تمہیں وادی سبز کا بزرگ و محترم سردار عاشم یاد ہے؟ وہی مظلوم سردار عاشم کہ جسے قتل کر کے ظالم سیان نے وادی سبز پر قبضہ کر لیا۔ اور وسیط کی آواز آئی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں اے سردار وسیط، ہم اپنے اس شریف و محترم سردار عاشم کو نہیں بولے، کسی نے کہا، اور اس کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ تو سنو، اسی محترم سردار کی عاشم کی بیٹی مابلہ زندہ ہے، اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرو کہ جب تک سردار عاشم کی بیٹی کو اس کا حق نہیں مل جاتا تم اس رات کو رات ہی رکھو گے۔ سردار وسیط بولا، اور پھر اس نے وہاں موجود 4 سرداروں سے رازداری کا عہد لیا۔ سبھی سرداروں نے بلند آواز میں عہد کرتے ہوئے کرنے کے الفاظ بلند آواز میں دہرائے۔ اس کے بعد وسیط کی آواز پھر ابھری، اور تمہیں ایک خوشخبری میں اور سننا چاہتا ہوں۔ محترم مقدور سردار عاشم کی بیٹی مابلہ اپنی فوج لے کر نثار سے آ ملی ہے، اور وسیط نے قبیلے کے سرداروں کو بتایا۔ مگر کب اے وسیط؟ ہم نے تو اس سلسلے میں کچھ نہیں سنا، کوئی سردار بولا۔ سیان کے دستے راست وہاب کے خلاف جنگ کرنے والوں میں نثار کے ساتھ مابلہ بھی تھی۔ کیا تم نے سردار نثار کے ساتھ وہاب سے جنگ آزما ہونے والوں میں سانپ والی آتون کا ذکر نہیں کیا؟ ہاں، ہم نے وہاب کے حوالے سے ایک ایسی نوجوان اور حسین دوشیدہ کا ذکر سنا ہے جو خطرناک سانپوں کو زیور کی طرح اپنے گلے اور باہوں میں ڈالے رہتی ہے، اور اس پر اسرار اور دشیدہ کو سانپ نہیں ڈستے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ اسے آتون دیوی بھی کہتے ہیں، جو حیرت انگیز قوتوں کی مالک ہے، اور دیوتا اس پر مہربان ہے۔ مگر آتون دیوی اور سردار عاشم کی بیٹی مابلہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اے سردار وسیط، کیا سردار نے سوال کیا۔ وہی آتون یا آتون دیوی دراصل سردار عاشم کی بیٹی مابلہ ہے، وسیط نے گویا انکشاف کیا، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ دیوتا اس پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ دیوتاؤں کی چہیتی ہے، اور سنو کہ وہ تنہا نثار کو اپنے ساتھ لے کر ہماری طرف آئی ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ وہ دیوتاؤں ہی کے حکم پر ہمیں عیار و عیاش اور بد کردار ساحر زعیم سے نجات دلانے یہاں آئی تھی، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ زعیم کا پہاڑ زمین میں دھنس گیا، جہاں اس نے گناہوں کی دنیا آباد کر رکھی تھی۔ اب ہماری بستیوں سے کنواری اور حسین لڑکیاں اغوا نہیں کی جائیں گی، اور پھر تو اس نے یقیناً ہم پر احسان کیا۔ اے وسیط، ایک سردار کی آواز ابھری، ہمیں بتا کہ وہ سانپوں والی آتون دیوی، وہ سردار عاشم کی بیٹی کہاں ہے؟
वो इसी हवेली में है और नसार भी उसके साथ है। वो दोनों तुम्हारी सारी बातें सुन चुके हैं और कि वो पहलू वाले कमरे में मौजूद हैं, मगर अब मैं उन दोनों से दरख्वास्त करता हूं कि वो तुम्हारे सामने आ जाएं ताकि तुम सब उन्हें ताज़ीम दे सको। वसीयत के ये अल्फाज सुनते ही मैं उठ खड़ी हुई और दरमियानी दरवाज़ा खोलकर नसार को साथ लिए बड़े कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में मौजूद वसीयत समेत तमाम सरदारों ने उठकर हमें ताज़ीम दी और फिर उन्होंने बारी बारी नसार के और मेरे हाथ पर हाथ रखकर हमसे वफादारी का अहद किया। ऐ मोहतरम सरदार, नसार और मैं सयान के खिलाफ तुम्हें अपनी ताईद व हमायत का यकीन दिलाती हैं, मैंने उन्हें मुखातब किया। फिलहाल हमें अपने दुश्मनों को अपनी तरफ से चौकन्ना और होशियार करना नहीं चाहते, इसलिए कि मैं तुमसे राजदारी का तकादा करती हूँ कि जब तक वादी सबद पर फतेह ना कर ली जाए, दुश्मन को यह खबर नहीं होनी चाहिए कि दरअसल उसके मुकाबले पर कौन है, और उसे उसी धोखे के में मुब्तला रखना है कि उससे नबर्द आदमा होने वाला सिर्फ सरदार नसार है। सयान मुझे आतून देवी के नाम से जानता है, सो उसे यही गलतफहमी रहने दो और तुम भी मुझे आतून ही कहो और आतून ही जानो। ठीक है आतून देवी, हम तुझे इसी नाम से पुकारेंगे, एक सरदार ने कहा और बकिया ने उसकी तायद की। सुनो ए मुअज़्ज़ज़ सरदार, नसार ने उन सरदारों को मुखातब किया, फिलहाल तुम्हें उस वक्त तक सयान के खिलाफ ऐलान जंग नहीं करना कि जब तक मैं और आतून वादी सबद पर हमला ना कर दें। हमारे हमला आवर होने की इतला तुम्हें हमारी आमद के साथ ही हो जाएगी कि वादी सबद पर हम उसी तरफ से हमला करेंगे। इस तरफ से सिर्फ एक बस्ती ऐसी होगी जिससे हमें शायद गुजरते हुए मज़ाहमत का सामान करना पड़े, और मेरे इल्म इतला के मुताबिक वादी सबज के इर्द गिर्द कुल 9 कबीले आबाद हैं, जिनमें से 6 इस इलाके में और 3 मगरबी सिमत हैं। ए मोहतरम सरदार, क्या मुझे दुरुस्त मालूमात हासिल हैं? कतई ए सरदार नसार, तेरी इतला दुरुस्त हैं, वसीयत ने जवाब दिया और कहा, और फिर बताने लगा, इस तरफ जो 6 बस्तियां हैं उनमें से 5 बस्तियों के सरदार यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ कलाउज यहाँ नहीं है, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक वो बड़ा मौका परस्त है, और जब उसे ये मालूम होगा कि इस तरफ के 5 कबीले तुझसे मिल गए हैं और वो अकेला रह गया, तो हरगिज अपनी और अपने कबीले की तबाही और बर्बादी को आवाज नहीं देगा। और मुझे यकीन है कि वह सयान का नाब होने के बावजूद तेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। यूं तो किसी मज़ाहमत के बगैर इस तरफ से वादी सबद पर हमला कर सकेगा, और जैसा कि तू सुन चुका है कि 3 मगरबी बस्तियों में से एक का सरदार सनिया भी हमसे इत्तेहाद कर लेगा, वो सयान का जख्म खुर्दा है। यूं सयान की मदद पर मगरब में आबाद सिर्फ 2 कबीले छोटे रह जाएंगे, उनसे निमटना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। वसीयत ने तफसील के साथ पूरे इलाके की सूरत हाल पर रोशनी डाली और आखिर में दरियाफत किया, ऐ सरदार नसार, अगर तू कहे तो मैं तेरी तरफ से सरदार सनिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश करूं। तुझे मेरी तरफ से ये इख्तियार है ए वसीयत, नसार ने इजाज़त दे दी, मगर उसी के साथ ताकीद की कि राजदारी बहरहाल ज़रूरी है और तुझे इसका बहरहाल ख्याल रखना होगा, क्योंकि हम अचानक दुश्मन पर टूट पड़ना चाहते हैं। ए सरदार नसार, ये बूढ़ा तेरी ताकीद का पूरा ख्याल रखेगा, वसीयत ने यकीन दहानी कराई। ऐ सरदार आशिर के बहादुर बेटे, एक सरदार ने नसार को मुखातब किया, और मेरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद दूसरे कबीलों के सरदार भी यही ख्वाहिश करेंगे कि तू इस इलाके में हमें अपना नायब कहलाने जाने का एजाज़ बख्श दे। इस पर दूसरे सरदारों ने भी तायद की। ऐ मोहतरम सरदारों, मैं तुम्हें अपना नायब नहीं दोस्त समझता हूँ, और दोस्ती के बराबर की सतह पर परवान चढ़ती है। मैं इसे अपने लिए एजाज़ समझूंगा कि तुम्हारा दोस्त कहलाऊं। मैं हाकिम महकूम की बजाय तुमसे दोस्ती का रिश्ता अतवार करता हूँ कि महकूम को सयान की तरह आंखें भी फेर लेते हैं, मगर दोस्त हमेशा वफादार रहते हैं, दोस्त कभी नहीं बदलते। नसार की आवाज़ शिद्दत जज्बात से बोझल हो गई और फिर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बोला, आओ मेरे दोस्तों, मेरे गले से लग जाओ कि मैं फख्र कर सकूं कि मुझे वफादार दोस्त मुयस्सर हैं। सयान पर फतह हासिल करने के बाद तुम सबसे पहले ही की तरह अपने अपने इलाकों में आज़ाद और खुद मुख्तार रहोगे। सरदार आशिर का बेटा तुमसे दोस्ती का अहद करता है। ऐ बहादुर बाप के बहादुर बेटे, तूने हमें बेदाम खरीद लिया, एक सरदार आगे बढ़ते हुए बोला और बड़ी गर्म जोशी के साथ नसार से गले मिला।
और फिर वसीद समेत बारी बारी नसार सभी से गले मिला। और अभी कुछ देर पहले नसार के मुतल्लक एक सरदार ने अपने जिन जज्बात का इजहार किया था, मेरे ख्याल में वो है भी ऐसा ही था। नसार ने वाकई उन सब को बड़ी जहानत से अपना गर्विदा और जानसार दोस्त बना लिया था। बड़ा आई दर असल यही है कि जो हासिल हो सकता है हासिल ना किया जाए और उसे दूसरों का हक समझकर छोड़ दिया जाए। नसार को यकीनन इन सरदारों पर बड़ा हर एतबार से बर्तरी हासिल थी और खुद उन्होंने नसार की नियाबत के लिए खुद को पेश किया। नसार उन्हें खुद उन्हीं के मर्जी के मुताबिक अपना नायब बना सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। नसार ने उन्हें बराबरी का हक देकर गोया उनके दिल जीत लिए, और दिलों को फतेह कर लेना ही तो असल फतेह है। जब हम अजलास कुछ देर बाद खत्म हुआ और चारों कबीलों के सरदार रुखसत हो गए तो मैं बहुत खुश थी। नसार और मैंने बगैर जंग किए दुश्मनों की 5 बस्तियां फतेह कर ली थी। सरदार वसीद क्योंकि मेहमानों के साथ खाना खा चुका था, इसलिए रात के खाने पर मेरे और नसार के साथ सिर्फ शीना थी और उसने भी हमारी वजह से अब तक खाना नहीं खाया था। खाने के दौरान पहली मर्तबा मैंने ये बात महसूस की कि शीना बार बार नजर बचाकर नसार की तरफ देख रही थी। उस वक्त शीना के चेहरे पर ऐसे ही जज्बात का अक्स था कि मैं चौंक उठी। यकीनन वो नसार की मर्दाना वजह से मुतासर हो गई थी और शायद अपना दिल हार बैठी। तू फिर कब आएगा नसार? शीना जैसे नसार पर कुर्बान हो जाने वाले लहजे में पूछने लगी। शायद अब उसी वक्त आना हो ऐ शीना जब दुश्मन से आखिरी मार्के की नौबत आए। नसार ने पानी का कटोरा हाथ उठाते हुए जवाब दिया। ऐ नसार, तेरे आने का मैं इंतजार करूंगी। शीना ख्वाब आलूद लहजे में बोली। तो शायद उस ख्याल से जल्द आ जाए कि कोई तेरा मुंतजिर होगा। उस पर नसार ने चौंक कर शीना की तरफ देखा। जाहिर है कि वो भी शीना के लफ्जों में छपे हुए जज्बात को समझ गया होगा और हैरत के बाद नसार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने कहा, तुझे मालूम है ऐ शीना कि जब हम दुश्मन को मगलूब कर लेंगे तो क्या होगा? मैं नसार के इस सवाल की गहराई तक पहुंच गई। यकीनन वो इस मासूम और बीमार लड़की के ख्वाबों का शीश महल चकनाचूर कर देना चाहता था। शायद नसार उसे ये बताता कि इस जंग के बाद वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, मगर मेरे नजदीक ये जुल्म था। किसी की उम्मीदों के चिराग यूं एकदम नहीं बुझाए जाते और यूं भी वो भोली लड़की अचानक ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाती कि तू पहले ही से बीमार थी। दुश्मन को जेर कर लेने के बाद शायद तो किसी के पेशानी पर बोसा देगा। शीना जज्बात से बोझल आवाज में बोली। इन पहाड़ी बस्तियों में हमेशा के लिए मर्द और औरत एक दूसरे को कबूल करने का इजहार उसी तरह करते हैं। तू यकीनन बहुत ज़हीन है शीना, तूने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। ये कहता हुआ नसार ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर नसार कुछ और भी कहने वाला था कि अचानक मैं बोल उठी। वो किस खुश नसीब दोशीदा की पेशानी होगी ऐ शीना। अभी तक नसार ने मुझे भी इस रात से आगाह नहीं किया। शायद अभी उसने कोई फैसला नहीं किया और मेरे इन अल्फाज का मकसद नसार को महज ये बावर कराना था कि वो अजहार हकीकत से गुरेज करे। और मेरी बात सुनकर शीना ने बड़ी कातल नजरों से नसार को देखा और कहने लगी, शायद इसे खुद भी नहीं मालूम कि उसके होंठ किसकी पेशानी को ये इज्जत बख्शेंगे, क्योंकि ए नसार, मैं ये अंदाजा भी ठीक ही लगाया था। नसार कुछ सटपटाया हुआ सा नजर आने लगा और उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ शायद। और फिर जब शीना चली गई और मैं और नसार के साथ उस कमरे में आ गई जहां हमें रात गुजारनी थी, तो मेरे दिल की बात जुबान पर आ गई। ऐ नसार, तू वही बात अभी से किसी पर क्यों जाहिर करना चाहता है जो अब तक सिर्फ तेरे और मेरे दरमियान रही? मगर ऐ अतून, क्या तूने महसूस नहीं किया कि वो शीना मुझे कैसी नजरों से देख रही थी? क्या तू ये चाहती है कि उसे गलतफहमी का शिकार रहने दिया जाए, उसे हकीकत ना बताई जाए? नसार के लहजे में बड़ी बेबसी थी। मत भूल ऐ नसार कि वह मजलूम लड़की बीमार भी है। मैं बोली, तू अगर उसे ये बता देता कि दुश्मन पर फतह पाने के बाद तेरा इरादा मुझे अपनी बीवी बनाने का है, तो उसके दिल पर जाने क्या गुजरती। मुमकिन है कि यह सदमा उसे मजीद बीमार डाल देता। लेकिन आतून, इसका मतलब ये तो नहीं कि उस लड़की का दिल रखने की खातिर मैं अपने दिल का खून कर लूं। नसार, अगर वो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है तो उसे तेरे दिल के खून होने का क्या तल्लुक? भूल जा उसकी बातों को। हमेशा कल ही सुबह तो यहाँ से चल देना है। आने वाले वक्त खुद उसे बता देगा कि मोहब्बत यक तरफा नहीं होती। मैंने नसार को समझाया। फिर नसार ने इस मामले में कुछ नहीं कहा,
मालूम नहीं मैं कुछ समझा था या नहीं, और मेरा मकसद महज ये था कि शीना की दिल आजारी ना हो, और मैं अपने इस मकसद में कामयाब रही। दूसरे दिन सुबह वसीत ने अगवाशुदा लड़कियों को उनकी बस्तियों में बेहफाजत भिगवाने का बंदोबस्त कर दिया, और हमने भी वसीत से रुखसत की इजाजत चाही। उसने मफला मुहावजों का एक दस्ता भी हमारे साथ कर दिया, वो हमें बेहफाजत सयान के दरनगी इलाकों से निकलने में मदद दे सके। वसीत ने दस्ते के सालार को यह हदायत दी कि कलाज की बस्ती में दाखिल हुए बगैर हमें दूसरे रास्ते से सरहद अबूर करा दे। और रुखसत होते वक्त एक और वाकया पेश आया जिसने नसार को परेशान कर दिया। जिस वक्त हम रवानगी की तैयारी कर रहे थे तो शीना आ गई। उसने अचानक आगे बढ़कर नसार की पेशानी चूम ली। पहाड़ी बस्तियों की रवायात के मुताबिक जब कोई औरत किसी मर्द की पेशानी को यूं चूम ले तो उसका मतलब यही समझा जाता है कि वो औरत उस मर्द की बीवी बनना चाहती है, और जवाब में अगर मर्द भी औरत की पेशानी चूम लेता है तो ये समझ लिया जाता है कि मर्द ने भी औरत की पेशकश को कबूल कर लिया। मगर नसार ने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा करता तो भी कैसे कि मुझसे अहदे वफा बांध चुका था, और मैंने जिस लम्हे से अब तक का ग्रेज किया था आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। अमूमन औरतें खुद पेशकदमी नहीं करती, लेकिन करती हैं तो फिर मर्द की तरफ से इसका जवाब मिलने पर ना मिलने पर उसे अपनी तौहीन ख्याल करती हैं, यानी मर्द ने उन्हें कबूल नहीं किया या ठुकरा दिया। और जवाब में नसार ने जब शीना की पेशानी पर बोसा ना दिया तो वो चंद लम्हे तस्वीरें हैरत बनी उसे देखती रही, और फिर मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। उसके बाद वो रुकी नहीं और तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गई, और मैंने चाहा भी कि उसे आगे बढ़कर रोक लूं, मगर ऐसा नहीं कर सकी। शायद इस ख्याल ने मेरे कदम रोक लिए थे कि शीना कैसे कहती भी तो क्या कहती, उसे किस तरह दिलासा देती, और मेरे बस में था भी क्या। गनीमत यह था कि शीना को नसार की पेशानी चूमते हुए मेरे सिवा किसी और ने नहीं देखा, और कमरे में इस वक्त नसार के साथ सिर्फ मैं ही थी। और कुछ ही देर बाद मैं और नसार मुहावजों के साथ वसीत की बस्ती की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया, और हम दोपहर होते होते सयान के ज़ैर असर इलाके से निकल आए। इतनी देर भी इसीलिए हुई कि कलाज की बस्ती से ना गुजरने की खातर हमें एक तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ा। जब हम खतरे की हदूद से बाहर आ गए तो वसीत के मुहावजों को वापस भेज दिया। तीसरे पहर हम आशिर की बस्ती के नवा में पहुंच चुके, और ये वही पहाड़ी सिलसिले थे जहाँ कबीत वाले आबाद थे, और ये पहाड़ी सिलसिले हमारे दाएं जानब थे। उधर से गुजरते हुए मुझ पे बरीसा का ख्याल आया, जिसे मैंने कबीत वालों का सरदार बना दिया था। उसी के साथ मेरे ज़हन में एक और सवाल भी पैदा हुआ। इस तरफ अभी तक ना मेरा ख्याल गया था और ना ही नसार ने शायद तवज्जो दी। कबीत वाले यकीनन बेहतरीन लड़ाका थे, मगर क्या वो सयान के साथ मुमकिन जंग में हमारे काम आ सकते थे? इस सवाल का जवाब नफी में ही था। वजह वही थी कि वो कदीम तरीका जंग ही के आदी थे और कदीम हथियारों से लड़ना जानते थे। उनमें से कोई भी बंदूक, रिवाल्वर या राइफल चलाना नहीं जानता। ऐसी सूरत में वो हमारे लिए बेसूद होकर रह गए, और मेरे ख्याल में उन्हें जदीद हथियार चलाने की तरबियत देना बहुत जरूरी था। इस जंग की तरबियत के बगैर वो हमारे शाना बिशाना नहीं लड़ सकते, और मैंने सोचा कि बस्ती में पहुंचने के बाद ये गुफ्तगू नसार से जरूर करूंगी। उसके अलावा मेरे सामने एक मसला और भी था जो ज़हनी उलझन का सबब बना। अजीम मुहिमन के हुक्म के मुताबिक मैं और नसार बूढ़े साहर ज़ईम को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वो फरार हो गया, और फरार होकर वो कहाँ गया हम उससे ला इल्म थे। सरगोशी में हमें जो हुक्म दिया गया था वो ये था कि साहर ज़ईम से निमटने के बाद ही हमें सयान पर हमला करना है, और मेरी ज़हनी उलझन का सबब यह सवाल था कि हम साहर ज़ईम को ख़त्म किए बगैर क्या वादी सबद पर हमला कर सकते हैं। हमारे लिए ऐसा करना कहीं अजीम मुहिमन के हुक्म से सरताबी तो नहीं होगी। उस वक़्त भी आशिर की बस्ती की तरफ जाते हुए मेरा जहन इसी मसले में उलझा हुआ था। पहाड़ी दर्रे से पहले और चश्मे के करीब पहुंचते पहुंचते अचानक मुझे पुर इसरार सरगोशियां सुनाई देने लगी। ए माबला और ए नज़ार, तुम दोनों को मुबारक हो कि तुमने बदी का ठिकाना उजाड़ दिया और फतेहमंद हुए। बदी का वो हरकारा इस पर देवताओं की लानत हो फरार होकर वादी सबज पहुंच गया। उसने अब वादी सबज के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों में से एक पहाड़ को अपना मस्कर बनाने का फैसला किया है, और ये मीनार नुमा पहाड़ वादी सबज की मगरबी सिमत में है, और ये अपनी अलग साखत और बनावट की वजह से बाआसानी पहचाना जा सकता है। वो लानती साहर
اب وادی سبز کے مغربی سمت میں بسنے والی 3 بستیوں کو اپنا شکار گاہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مینار نما چٹان پہاڑ کے قریب ترین بستی سنیا ہے، اور وہاں تم دونوں کو وسیط ہی کی طرف پناہ دینے والا موجود ہے۔ تمہیں اس طرف جانے کا حکم ہے، مگر 7 دن گزر جانے کے بعد تم ادھر کا رخ کرو گے۔ اس تاخیر میں جو مصلحت ہے، وقت آنے پر خود ہی تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ تم وہاں پہنچ کر اپنے دشمن کے بہت قریب ہوگے، اور تمہیں اپنے دشمن کے بارے میں کچھ ایسی نئی باتوں کا علم ہوگا جو اب تک تمہارے علم میں نہیں تھی۔ تمہارے لیے حکم اب بھی وہی ہے کہ جو پہلے تھا۔ تمہیں پہلے ساحر زعیم کو ختم کرنا ہے، اسی کے بعد وادی سبز پر حملہ کرنا تمہارے لیے مقدر کیا جا چکا ہے۔ اس مرحلے میں بھی تم آزمائشوں سے گزرو گے، مگر جی نہ ہارنا، اور یقین رکھنا کہ نیکی ہی بدی پر غالب آئے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سرگوشیاں آنا بند ہو گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے اور نثار کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ میں اب تک جس ذہنی الجھن کا شکار تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بوڑھا ساحر زعیم فرار ہو کر کہاں گیا، اور موجودہ مرحلہ مجھے پہلے مرحلے سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ ہمیں اب وادی سبز کے بالکل قریب پہنچنا تھا، اور وہ بھی فوج کو ساتھ لیے بغیر۔ اس سلسلے میں اگر ہمارے دشمن کو ذرا سے بھی سن گن مل جاتی تو وہ ہمیں ہرگز زندہ نہ چھوڑتا۔ وادی سبز سے بستی سنیا کا فاصلہ خاصا کم تھا، اور پھر ہمیں تو بستی سنیا سے بھی آگے بڑھ کر مینار نما پہاڑ تک پہنچنا تھا۔ تو کیا سوچنے لگی آتون؟ اچانک نثار نے مجھے مخاطب کیا، اور میں چونک کر بولی، انہی سرگوشیوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں نثار، جو تجھے بھی یقیناً سنائی دی ہوں گی۔ آتون، اگر بستی میں کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہے، یعنی یہ کہ ہم دونوں وادی سبز کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جو بھی سنے گا شاید ہمیں پاگل ہی کہے گا۔ نثار یہ کہتے ہوئے آہستہ سے ہنسا، اور شاید یہ بھی خیال کرے کہ ہمارا ارادہ خودکشی کرنے کا ہے۔ میں نے بھی ہنس کر بولی، یہ تو خیر بات کی بات ہے نثار، کسی کو اگر ہم یہی بتا دیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں تو ہماری باتوں پر یقین نہیں کرے گا، لیکن ہم پر یقین ہیں کہ آخر کار فتح ہم ہی کو ہوگی۔ اس وقت بھی تو ہم دونوں بغیر کسی لشکر کی مدد کے دشمن کی 5 بستیوں کو فتح کر کے آ رہے ہیں۔ میں تو بہت ڈرا ہوا تھا آتون کہ جب تو وسیط سے گفتگو کر رہی تھی، مجھے خدشہ تھا کہ جیسے ہی وسیط کو معلوم ہوگا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں تو وہ ہم دونوں کو گرفتار کر لے گا، مگر تو بڑی مروت سے شناس ہے، تو نے وسیط کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی۔ نثار بولا، اے نثار، میرا مردم شناسی کا کیا یہی ثبوت کافی نہیں کہ میں نے تجھے پہچان لیا؟ میں تو پھر بھی تیرے سامنے کسی کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھا اے آتون، مگر وسیط کو پہچاننا واقعی بہت مشکل تھا۔ بلا شبہ تو نے اسے پہچان کر کمال کر دیا، اور پھر جس طرح دھیرے دھیرے تو اسے راہ راست پر لائی، تیرے ہی لیے ایسا ممکن تھا۔ تیری جگہ اگر میں ہوتا تو ہرگز اتنی ہمت نہ کر سکتا۔ اپنی تعریف کسے اچھی نہیں لگتی، اور مجھے بھی اچھی لگی، خاص طور پر نثار کی زبان سے، مگر اس وقت مجھے شرارت سوجی اور نثار کو چھیڑنے کی خاطر شینا کا ذکر چھیڑ دیا۔ مگر اے نثار، وسیط کی بیٹی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اسے تو میں بھی نہیں پہچان سکی تھی۔ چھوڑ دے آتون، اس کی بات نہ کر۔ یہ کہہ کر وہ اس طرح شرمانے لگا جیسے لڑکیاں عموماً اپنے عاشق یا شوہر کے ذکر پر شرما جاتی ہیں۔ Come and fly away with me. Come and